Assalamu alaikum everyone. How are you? I'm fine. Nice to hear you people. Okay. Uh, we were just discussing the kinematics, and in that we just talked about the speed time graph. Remember? And then what we did? We made a grid as well. Beta spawn multimedia. Online people, I have just shared a document with you. It's just a worksheet. आप लोगों को भी hard copies में मिल रही हैं. Group में मैंने upload कर दिया. I'm just going to show it on the multimedia as well. We are going to do those questions together. All right? But we are going to start with the last question first. Okay? And last question is question number 9. People online, do you have the access to that internet? I mean that group right now. You can take out that worksheet from there. Just post it. और जिन बच्चों को नहीं मिली है, they can see it here on the board. Okay. But it's on you. We're just going to revise those speed time and distance time graphs. Okay? Do that, yeah, manually. Okay, on off लिखा होगा बस उसको क्लिक कर दो. चलो आ जाओ. ओके, जब तक ये हमारा मल्टीमीडिया हमसे मानता है. Look at question number 9 in your worksheets. A car is brought to rest in 5 seconds from a speed of 10 meters per second. All right. What is the average deceleration of the car? I'm reading the statement again. You can make the data along with it. A car is brought to rest in 5 seconds from a speed of 10 meters per second. Initial speed is u, v or time कितना? So final velocity is 0 meters per second. Initial is 10 meters per second, and the time which it took is 5 seconds. But ये on नहीं होता. 5 seconds. And we need to know the deceleration. This one. किसने करना है? तभी तुम लोगों के मुंह इतने उतरे हुए हो. खैर कुछ नहीं होता. पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीतेगा, देखना. ऑलराइट, चलो इधर आ जाओ शाबाश. ये क्वेश्चन था. गुड गुड. ये भी ये वाली लाइट ऑन मेरे से. गुड, वेरी गुड. मस्त चीज. ओके बेटा. हाँ
राइट टू नेम ऑन द टॉप। ये जो शीट्स मिल रही हैं आपको इसके नाम में यही चीजें जो आपको बोर्ड पे नजर आएंगी। ऑलराइट, कार इज ब्रॉट टू रेस्ट इन 5 seconds. दिस इज टाइम from a speed of 10 meters per second. This is initial speed. Brought to rest, V is 0. Okay. What is the average deceleration? Question mark. कौन सा फॉर्मूला लगेगा? मुश्किल लगते हैं ना, तो पहले डेटा बनाते हैं सबसे पहले। V 0, U 10, T 5 seconds, and A is question mark. Usman, कौन सा फॉर्मूला है? V minus, put the values, see whether you are going to get deceleration automatically or not. Minus sign आएगा? Alright, कितना आया? Minus कितना? 2. Minus 2. Up, they have used this word deceleration. That means minus is already included there. अब इनमें से कौन सी ऑप्शन है? B. So you are going to circle that. Okay. ऐसे ही है. That was just a revision. Quick revision. ताकि आपको ये सब पता हो. Now we are moving on to the graph. और ग्राफ में सबसे पहले we are going to do question number 8. यानी हम बिल्कुल बैक से we are moving, बैक से we are coming to the front. बहुत शुक्रिया। अदनान साहब तो नहीं आ जाए तो भाई आप लोग मेरे साथ चलिए। All right. You can see those 4 graphs. 1, 2, 3, and 4. क्या क्या है ये? Speed time, distance fallen time, and distance fallen time. All right. Before we go into the details of the question, are you people able to read these graphs? ये जो straight line graph होता है, ये किसका होगा? If we are increasing one quantity, ये increase कर रहे हैं, ये भी increase हो रही है, तो दोनों का आपस में relation क्या होगा? Directly proportional. शाबाश. When we are increasing one, the other is also increasing. That is directly proportional. Directly proportional का हमेशा ऐसा ग्राफ है. The two quantities, they are directly proportional. ठीक है बेटा? अच्छा, एक और वर्ड, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी होता है। उसका ग्राफ कैसे बनेगा? उसका ग्राफ कैसे बनेगा ना? उसका ग्राफ बनता है, कीपर ऑनलाइन को बताएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ। लेट्स सपोज वी हैव टू क्वांटिटीज, प्रेशर एंड वॉल्यूम। वो साइकिल में हवा भरने वाला पंप होता है ना, प्रेशर ज्यादा करते हैं तो एयर का वॉल्यूम उसके अंदर क्या हो जाता है? कम। तो बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अब कैसे होएगा इसका ग्राफ? ठीक है, यू आर इंक्रीजिंग वन, द अदर विल डिक्रीज, और अगर आप इसको इंक्रीज कर रहे हो तो ये डिक्रीज होता है। दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है बेटा? डायरेक्टली एंड इनवर्सली, ये नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक हो गया? चलो इसको, इनको बनाओ किसी से काम आओ। ओके, तो ये 4 ग्राफ्स हैं जिसमें से 2 आर फॉर स्पीड टाइम एंड 2 आर फॉर डिस्टेंस टाइम। लेट्स सी व्हाट इज द क्वेश्चन। व्हिच ग्राफ शोज द मोशन ऑफ अ हैवी स्टील बॉल? देखिए स्टील बॉल, स्नूकर बॉल देखिए, बहुत सूखनी कोई हैवी स्टील की बॉल।
फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट ऑफ 2 meters। 2 meters कितना होता है, यहां से लेके यहां तक, ज्यादा दूर नहीं है, ठीक है, 2 meters। What do you expect when we will just leave the ball? What is going to happen? Speed will increase। जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा स्पीड भी क्या होती जाएगी, तो दोनों क्या होंगे आपस में। थैंक यू वेरी मच। आ जाओ आप, एक और में से कौन सा सही है इसका। ऑल राइट, आई एग्री कि दिस इज करेक्ट, दिस वन इज द ऑप्शन, बट व्हाई दिस इज रॉन्ग। देख रहे हो उसकी स्पीड इज इंक्रीजिंग टू अ लिमिट, यहां पे जाके क्या होगी, स्पीड इंक्रीज एंड टाइम चलता जा रहा है। ऐसा होता है पता नहीं होता, ठीक है। यहां पर देखो डिस्टेंस फॉलो, टाइम के साथ डिस्टेंस इंक्रीज करेगा, या एक जगह पे जाके रुक जाएगी और टाइम चलता रहेगा। अब वहां में कहीं रुकेगी तो नहीं ना, तो नॉट ट्रू। Which graph shows the motion of air of from a height of 2 meters? ये या ये दोनों में से कौन सा वाला ठीक होएगा बताइए, डिस्टेंस टाइम में या स्पीड टाइम। ओके, ये भी ऑप्शन हो सकती है और ये भी हो सकती है, दोनों को निकल A and C both are there। Now you have to decide which one of them is। हाँ, लेकिन थोड़ा सा हम वो समझाने के लिए, अब जब हम इसको यूज करते हैं तो मिक्सअप कर, इंसान, इंसान में कौन आता है, मर्द भी आते हैं, खवातीन, बच्चे आते हैं, और इंसानों में बूढ़े और इंसान सब यहाँ। बिल्कुल इसी तरह से डिस्टेंस में हम हाइट भी ले रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट भी ले, वो इस तरह से। बट व्हेन यू आर स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट डिस्प्लेसमेंट, तो फिर डिस्प्लेसमेंट, जब आप स्पेशली एक जेंडर की बात कर रहे हैं तो फिर इंसान भी कहेंगे, फिर वो जेंडर। अब हम ओवरऑल बात, ठीक है बेटा। ऑल राइट, व्हाट डू यू थिंक। सादिक ने लगा जी ए, शाबाश। कोई और बच्चा, आपका भी यही है, हैंडल इज आल्सो देयर, यही है बोलो। आसान। ऑनलाइन पीपल व्हाट डू यू थिंक, स्पीड टाइम वाला ठीक है या डिस्टेंस टाइम वाला ठीक है। जी कम ऑन यार, बख्तियार, फातिमा, उमर, कोई तो बताओ यार। उमर नहीं, यस बेटा, टेल मी। Speed time. All right, she also saying speed time. Why not distance time? All right, we got so many options for speed time. Why not distance time? 2 meters यहां से छोड़ेंगे, टाइम के साथ डिस्टेंस भी तो इंक्रीज होएगा। 0 टाइम पे कितना डिस्टेंस कवर किया था उसने, और 1 सेकेंड पे, और फिर 2 पे। मेरा सवाल यहाँ पे एक ही है, क्या टाइम और डिस्टेंस दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मोर टाइम मोर डिस्टेंस, यस और नो, है ना। सेम इज द केस विद स्पीड एंड टाइम। फिर किसको कंसीडर करें, व्हाई स्पीड टाइम। ऑल राइट, ग्रेडियंट इसका क्या होता है, स्पीड टाइम का ग्रेडियंट डिस्टेंस होता है कि नहीं होता, पहले तो ये बताओ मुझे आप। चलो इधर ही, ग्रेडियंट मैंने नहीं कहा, आप लोगों ने कहा है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट ऑफ स्पीड टाइम इज इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस क्या है, नहीं मैं लिख देता हूँ। सी अभी कल पढ़ा है, कल दोनों छोड़ के समझ आ गया, समझ आ गया। भूल गया तो ग्रेड जाके घर खोल के देखी थी, जिम्बाब्वे का मैच भी आता। तो ग्रेडियंट इज व्हाट, इधर गौर से देखें प्लीज, एक्सेलरेशन, और
डिस्टेंस टाइम का ग्रेडियंट क्या है? ये स्पीड ठीक हो गया। ग्रेडियंट कांस्टेंट है, एंगल सबका इधर एंगल सबका कांस्टेंट है, टेंजेंट जो होता है ग्रेडियंट ऐसे ही है ना। मुझे ये बताओ बेटा, इसकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या इसकी स्पीड कांस्टेंट है? स्पीड टाइम ग्राफ में ग्रेडियंट इज एक्सेलरेशन, और कौन सी एक्सेलरेशन है? ये कौन सा फॉल है? शाबाश। तो इसमें कौन सी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होनी चाहिए? एक्सेलरेशन ड्यू टू, शाबाश। तो बेटा जी की वैल्यू क्या होती है? कांस्टेंट, ये चेंज हो जाती है। नहीं सर, तो इसका ग्रेडियंट कांस्टेंट है कि नहीं? विच इज 10। अब मुझे ये बताओ, इसका ग्रेडियंट है स्पीड, इसकी स्पीड सेम रहेगी ऊपर से नीचे आते हुए? क्या होगी स्पीड? इंक्रीज। तो स्पीड कांस्टेंट नहीं हो सकता, दैट्स व्हाई दिस इज, ये इतने आसान नहीं है, अभी देख के गैस लगा दे। ठीक है। Since the gradient of this is constant, which is falling actually g 10 meters per second square, that's why a was wrong, not the c. ठीक है। एक लेसन हमने सीखा इसमें से, MCQs में से। When you are doing the MCQs, remember, people online, you also please listen to me carefully. 2 मिनट के लिए क्रिकेट मैच को जेल से निकाल दें, इधर गौर से सुने। Whenever you will get MCQ, two of the options will be obvious wrong. In all the 4 options, 2 options will be wrong. ठीक है? Two options क्या होती हैं? Straight away wrong होती है, और 2 options they are very close to each other. उसमें बंदा फंस जाता है। Alright? So elimination method. पहले तो वो जो 2 wrong है उनको निकाल दो, eliminate करो, and then just concentrate on the 2 which are correct one, and then look for the logic, read the question carefully, read the scenario. और अगर scenario समझ में नहीं आ रहा हो तो क्या करें? Put yourself in that scenario. क्या हो इसके अंदर, then थोड़ा और easy हो जाए। Okay? ये छोटी छोटी सी टेक्निक्स हैं। आ जाएगी। Let's move on to question number 7 now. Question number 7 is, just give me a second, मैं इसको 1 मिनट में ठीक कर दूँ। All right. Question is, a skier, वो skiing जो करते हैं ना बर्फ पे ऐसे ही, a skier is traveling downhill. पहले मैं जरा क्वेश्चन पढ़ा कर दूं so that everybody can read it carefully. ठीक है? A skier is traveling downhill, नीचे आ रहा है. The acceleration on hard snow is hard snow, 4 meters per second square. And on soft snow is 2 meters per second square. मुझे ये बताएं, इसकी स्पीड हार्ड स्नो पे ज्यादा तेज होएगी या सॉफ्ट स्नो पे ज्यादा तेज होएगी? क्यों? Why?
सर ऐसे भी सोचते ना वो नीचे होता है आपको प्रॉब्लम देगा ओके हार्ड ये जो सादे के ना ये लॉजिकल आंसर दे रहे हैं ही सेड कि जो सॉफ्ट होती है ना सिर्फ इट्स लाइक अ सैंड वहां पर फंसने का चांस ज्यादा होता है तो वहां पे स्पीड तेज होगी या स्लो होगी so you are not focusing on the statement there this is the issue इधर ध्यान इधर करना they are saying she is traveling downhill नीचे जाते हैं the acceleration means what change means decrease or increase so acceleration का मतलब है increase in velocity यानी वेलोसिटी में बढ़ना ही बढ़ना है चाहे सॉफ्ट हो चाहे हार्ड हो दोनों सूत्रों में ओके क्यों किधर जा रहा है वो डाउन जब यूं नीचे जा रहा होता है बंदे की ब्रेकें लगती हैं रोल होता हुआ जा रहा होता है धड़ाधड़ ठीक है साहब तो ये फ्लैट नहीं है डाउन हिल तो इसलिए द पर्सन विल एक्सेलरेट स्पीड वेलोसिटी विल इंक्रीज अब वो कह रहा है हार्ड स्लो पे जो एक्सेलरेशन का रेट है दैट इज 4 मीटर पर सेकंड पे और सॉफ्ट पे 2 मीटर्स पर सेकंड ठीक है तो यू आर राइट कि सॉफ्ट पे कम तेज रहेगा लेकिन होएगा सही बिकॉज डाउन हिल जा नाउ which graph shows the motion of the sphere when moving from hard to soft what do you expect जब वो हार्ड से सॉफ्ट की तरफ जाएगा तो उसकी स्पीड का जो कर्व है जो पहले यूं करके ही जा रहा था अब वो कैसे हो जाएगा यूं के बाद इंक्रीज या थोड़ा कम ऐसे हो जाएगा पैरेलल या थोड़ा कम होएगा ऑलराइट लेट्स सी आज देखते हैं लेट्स सी ओके दिस वन यहाँ पे उसकी स्पीड कैसे दिस इज स्पीड टाइम सारा स्पीड टाइम ग्राफ तो ए में क्या हो रहा है स्पीड इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग और स्टेज द सेम तो एक्सेलरेशन तो प्रोड्यूस ही होगी ये तो हमारे काम की इसमें स्पीड इज इंक्रीजिंग वेरी गुड एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है कांस्टेंट फिर ये आगे सॉफ्ट स्लो यहाँ पे तो सॉफ्ट स्लो पे स्पीड तेज हो रही है डिक्रीज हो रही है ऐसे ही है ना हाँ जी ये देख रहे हो दोनों मैचिंग और डी क्यों नहीं हो सकता चीज करेक्ट यस बट डी क्यों नहीं देखो एक्सेलरेट हो रहा है हार्ड स्लो से सॉफ्ट पे जाएगा तो और ज्यादा तेज हो जाएगा लेस तेज मीन ये वाला लेस ऑलराइट बेटा ऑनलाइन पीपल आर यू गेटिंग इट आई एम स्लाइटली वरीड आप लोग बोल नहीं रहे हो जी हिबा जी सर आ रहे समझ ऑलराइट फातिमा आप बेटा समझ रहे हो जी सर ऑलराइट उस्मान एंड खदीजा आप लोग बहुत दूर हो सही से बताओ मुझे समझ आ रहा है जी सर ऑलराइट बेटा अगर आप लोगों को सबको समझ आ रहा है देन वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज नंबर 6 ले जी नंबर 6 मैं नहीं समझाऊंगा आपने खुद से करके देन वी आर गोइंग टू डिस्कस इट सर जी बेटा मैंने उससे क्वेश्चन 7 में एक चीज पूछनी है जी बेटा जरूर पूछो सर इन पार्ट बी मतलब क्वेश्चन में ये नहीं लिखा हुआ दैट द acceleration in hard snow is 4 meters per second square and soft is 2 meters per second square बेटा एक्सेलरेशन का क्या मतलब होता है increase इंक्रीज स्पीड डिक्रीज तो नहीं हो रही उसकी no यहाँ पे स्पीड क्या हो रही है decrease डिक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है स्लो डाउन हो रहा है
अगर ये चलता गया तो क्या हो जाएगा, इसका अंजाम जीरो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक हो है, जाएगा। तो दिस इज डिक्रीजिंग। तो एक्सेलरेशन में इंक्रीज होता है, एक्सेलरेशन में इंक्रीज है, तो यहाँ पे इंक्रीज बहुत ज्यादा है और यहाँ पर इंक्रीज थोड़ा कम है, बट है इंक्रीजिंग। ऑलराइट, इसीलिए दिस इज डिक्रीजिंग, तो ये हमारा काम का नहीं है। If you just look at these two, this is increasing and then this is less increasing. Okay, this is increasing and this is more increasing. तो C और D में से कोई आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है बेटा? Yes. नहीं समझ आया? नहीं सर, आ गई है। आगे ये चलो शाबाश। Then do question number 6 now. ये वाला This is the graph. Okay. Speed of the car as it moves from rest. What is the average speed of the car during the first 3 seconds? ये question है. First 3 seconds. यहाँ पर 3 seconds पर उसकी average speed. The keyword is average. Can anyone tell me the formula of average speed? Total distance divided by total time. Shabash. Total distance over total time. ऐसे ही है ना बेटा, ये ग्राफ किसके बीच में है? टाइम एंड स्पीड. If we can get distance from anywhere, we can easily calculate that. क्योंकि टाइम तो हमें पता है, टोटल टाइम कितने हैं? 3 seconds. What is the distance? अब distance, can we find distance from the speed time graph? कहां से निकालेंगे डिस्टेंस? कैसे? वो ग्रिड खोलो जरा जो कल लिखवाई थी और उसमें चेक करो कि स्पीड टाइम ग्राफ में डिस्टेंस क्या होगा. चेक इट प्लीज, चेक इट. सर एरिया लेते हैं हम. थैंक यू वेरी मच. बख्तियार कितना अच्छा बच्चा है यार, वेरी गुड बॉय, शाबाश. बाकी लोग भी चेक करो उनकी ग्रेड में क्या है. डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए फ्रॉम स्पीड टाइम वी आर गोइंग टू डिटरमिन द एरिया अंडर द कर्व. ये किस किस्म की शेप है? तो हम क्या करेंगे? एरिया ऑफ द हाफ बेस इनटू हाइट. ट्रायंगल. शाबाश. हाफ बेस इनटू हाइट, दैट इज इक्वल टू, और ये एरिया ऑफ अंडर द कर्व क्या है? डिस्टेंस. रिमेंबर, हाफ बेस कितना है इसका? बेस. शाबाश. और हाइट 12. कर सकते हो इसको सिंप्लीफाई. कितना है? 80. सादिक का ख्याल है डिस्टेंस इज 18 मीटर्स. सबका ये तो ये ठीक नहीं लगा. चेक करो शाबाश कैलकुलेशंस. ठीक है, ऑल राइट, चलो गुड. So we have determined the distance. What else do we need for average speed? We have got the distance, time. Time तो यहाँ पर given है. Total time कितना है? 3 seconds. तो divide करें तो average speed कितनी आई? 18 over 3 is 6 what? शाबाश, ये बताना बड़ा जरूरी है बेटा. ठीक है, अब देखो ये आपको
ऑलराइट, कोई क्वेश्चन यहाँ तक ठीक समझ में आ रहा है बेटा? साथ साथ करते जाओ, ये वर्कशीट आपके लिए, डू इट ऑन द वर्कशीट। और जिन लोगों के पास सॉफ्ट कॉपी है वो अपने जर्नल्स में, कॉपीज में करते हैं। बेटा कोई क्वेश्चन यहाँ पे पूछते हैं आपने? पीपल ऑनलाइन, ऑल नो ओके? सर। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। जी, क्वेश्चन नंबर 5 इज मतलब क्वेश्चन बड़ा कर रहा हूं सो दैट वी कैन रीड इट थ्रू। ऑलराइट, which speed line graph, ये जो नीचे बने हुए, which speed line graph shows an object moving with non-uniform acceleration? देखो स्पीड टाइम ग्राफ में एक्सेलरेशन क्या चीज होती है? एरिया अंडर द कर्व और ग्रेडियंट। जैसे ही ये वाला सवाल आया करे कि ग्रेडियंट क्या होता है, तो फौरन को ग्रेड निकाल के सामने रखती है, ठीक है? नाउ द ग्राफ इज स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ में एक्सेलरेशन इज व्हाट? ग्रेडियंट, ठीक है? स्पीड टाइम ग्राफ में ग्रेडियंट एक्सेलरेशन, और ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है? स्लोप, ठीक है? वो कह रहा है नॉन यूनिफॉर्म स्लोप, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इजी नहीं हो गया काम? किस ग्राफ में नॉन यूनिफॉर्म सर डी पार्ट। इसकी इसकी ये, ठीक है? वेरी गुड, यस। शाबाश, वेरी गुड। आपने अच्छा आंसर दे दिया, आई एम वेरी हैप्पी। बट आई विल बी मोर हैप्पी अगर आप मुझे ये बताओगे कि ये सी क्यों रॉन्ग है। सी में ग्रेडियंट या एक्सेलरेशन क्या है? इसकी सर स्लोप। जीरो एक्सेलरेशन। शाबाश, एक्सेलेंट बेटा। बाकी लोग भी पार्टिसिपेट करें जैसे उमर बनीन कर रही है। आई रियली इम्प्रेस्ड बेटा। अच्छा, बहुत अच्छा है, पूछोगे बताओगे और समझ में आएगा। ऑलराइट, फातिमा आप भी बेटा, हिबा, खदीजा, बख्तियार, उस्मान, सब लोग किया करो बेटा, पार्टिसिपेट किया करो, ठीक है? शाबाश, वेरी गुड। एंगल होता है ना स्लोप का मतलब, इसका तो है ही जीरो, कोई इसकी स्लोप ही नहीं है, तो एक्सेलरेशन भी जीरो होगी। ऑलराइट, so D is the answer. Good, great. Question number 4. The graph shows the speed of a runner during a race. Speed of the runner. आप में से जॉगिंग कौन कौन करता है? ऑलराइट, कभी कभी करते ही हो ना सब लोग। शाबाश, जरा ग्राफ मुझे देख के बताओ, ये जो रनर है ये एक ही स्पीड से भागता है। पहले उसकी स्पीड कैसी थी? इंक्रीज कर रही थी, फिर क्या होगी उसकी स्पीड? यूनिफॉर्म कांस्टेंट होगी फॉर सम टाइम, और एंड में स्लो हो गया वो या तेज हो गया? कभी आपने देखा है उसका जो मैच होता है एंड में कैसा जोर से वो तेज भागते हैं? यहाँ पे वही सीन है। ऑलराइट, नाउ लेट्स सी क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द रनर ड्यूरिंग द रेस? व्हाट इज द डिस्टेंस? डिस्टेंस क्या होएगा? मुझे बता दो, डिस्टेंस ग्रेडियंट है या सर एरिया? 75। वेरी गुड बॉय बेटा, ये फाइंड कैसे किया है? सर सबसे पहले मैंने एक ट्रायंगल बना लिया, उसका मैंने एरिया निकाला है, फिर मैंने क्यूबॉइड का एरिया निकाल लिया।
hold on. Bhaktiyar, just tell me, did you use gradient thingy or area under the curve? Sir, area. Area. That means speed time graph में area under the curve is distance. ठीक हो गया? Alright. अब area under the curve तो ये तो बड़ी अजीब सी शेप है. यहाँ पर Bhaktiyar, how you did it? Yes, sir. Is it a triangle, rectangle or what? कैसे किया बख्तियार आपने इसको? सर मैंने ये जो है ग्राफ, इससे मैंने 4 डिफरेंट शेप्स में तब्दील कर लिया था. मतलब एक ट्रायंगल बना लिया, एक क्यूबॉइड, दूसरा क्यूबॉइड और फिर तीसरा एक और ट्रायंगल. ये यूं कर दिया आपने इसको? वेरी यस सर. ये तो बख्तियार ने किया है. ही इज एब्सोल्युटली करेक्ट. शाबाश, वेरी गुड, एक्सीलेंट. कोई और तरीका है इसको करने का? ट्रेपीजियम क्या चीज होती है? How do you spell that trapezium? UN. Oh, trapezium. ये क्या होती है trapezium? जी. फोर साइड्स होती है इसकी. शाबाश. 4 sides. कैसी 4 sides? 4 sides में 2 sides are parallel. ठीक है? सॉरी, मैंने ये पैरेलल सीधी बनाई, यू पैरेलल. ठीक है? दिस इज कॉल्ड A, दिस इज कॉल्ड B, and H is the height between the two parallel sides. इसका एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ द trapezium is half H into A plus B. याद आ गया था देखो. वेरी गुड. ये इसका फॉर्मूला. बख्तियार, इस पे ट्रेपीजियम बन सकता था कहीं पे? लिखो जरा. कहीं तक हम यस सर. तो ये ट्रेपीजियम बन जाता. कहां तक? यहां तक. और एक और भी बन सकता था. इस वाले को भी हम एज अ ट्रेपीजियम ले सकते थे. मुझे तो इट्स अप टू यू जैसे भी आप इसको डिवाइड करना चाहें. बट एरिया का मतलब है इन सारी शेप्स का डिस्टेंस आपने एरिया ऐड करना है. ए, बी, सी एंड डी. तो डिस्टेंस विल बी ए प्लस बी प्लस सी प्लस सी. ठीक है? आप इस ट्रेपीजियम को बेटा एक रेक्टेंगल और एक ट्रायंगल में भी डिवाइड कर सकते हो अगर ट्रेपीजियम मुश्किल लग रहा है. ऑलराइट, यू कैन डिवाइड इट इनटू अ ट्रायंगल एंड अ रेक्टेंगल. इट्स अप टू यू. जैसे भी आप इसको डिवाइड करके सॉल्व करना चाहे कर सकते हैं. टोटल एरिया विल बी द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय. कितना आया डिस्टेंस? 75. व्हाट? 75 किलोमीटर्स. meters. बेटा 75 का यूनिट क्या होगा डिस्टेंस का? सबको यही आ रहा है. शाबाश. कुछ इजी होते जा रहे हैं ये तो मैं वीडियो वाले. ऑलराइट, कोई सवाल किसी का? एनी क्वेश्चन आप फिल नाउ? थोड़ा मुश्किल वाला आ रहा है अब. Look at question number 3. बेटा जरा लाइट्स ऑन करो. मैं आपको पैराशूटिस्ट की प्री फॉल समझा दूं पहले. Before we go into the details of question number 3, I need to just share the concept of the curve of a parachutist. What is a parachutist? A paratrooper. A paratrooper means when somebody jumps from the airplane with a parachute as well. All right.
तो जैसे ही वो पैराशूटिस्ट बाय जंप लगाता है, लेट्स सपोज ये प्लेन था, यहाँ से ये साबिक ने छलांग लगा दी, so what is going to happen? I mean, what about the speed of Sabik? जैसे ही उसने जंप लगाई, do you think he will accelerate? कैसे accelerate? मतलब उसकी स्पीड इंक्रीज होती जाएगी. So what if I just make the speed time graph? कैसे इसका बनेगा? स्ट्रेट ऐसे बनेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. जितना टाइम होगा उसकी स्पीड इंक्रीज होती जाएगी, बिकॉज एक्सेलरेशन इसका जो है ग्रेडियंट दैट इज यूनिफॉर्म. तो 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर के साथ उसकी स्पीड इंक्रीज होती जाएगी विद एवरी सेकंड. ऐसे ही है ना? तो दिस इज द ग्रेडियंट. अब मुझे ये बताओ, ये यहाँ पर पहुंच गया सारे, यानी यहाँ तक इस पॉइंट. अब इसने अपनी पैराशूट खोल दी. लो पैराशूट खोल दी. जैसे ही पैराशूट खुलेगी इसकी स्पीड पे वो फर्क पड़ेगा. क्या होगी इसकी स्पीड? तेज हो जाएगा, स्लो हो जाएगा. स्लो हो जाएगा. तो यहाँ पे कर्व पे कुछ फर्क पड़ेगा ना? क्या है, एकदम से इसको झटका लगेगा, स्पीड स्लो होगी. जैसे पैराशूट खुलता है एक झटका सा लगता है, स्पीड स्लो. ये झटका सा लगता है, स्पीड स्लो होके फिर क्या होती है स्पीड? फिर ये एक्सेलरेट होएगा, फिर ये क्या हो जाता है? यूनिफॉर्म स्पीड से नीचे आता है. तो ये कर्व बनता है पैराशूटिस्ट के लिए. ओके, स्पीड इज इंक्रीजिंग, पैराशूट खुल गया और फिर ये स्पीड यूनिफॉर्म है. ऑलराइट, यस और नो? अच्छा यार, मेरा सवाल ये है कि इसकी स्पीड स्लो क्यों हुई है पैराशूट खुलने से? रेजिस्टेंस. ओके, एयर रेजिस्टेंस. Khadija, what is the direction of air resistance? नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ? सर मैं कोई टाइम बहुत बताओ जी बेटा, क्या बताओ? सर इट इज अपवर्ड्स. इट इज अपवर्ड. सपोजिटली पैराशूट में यहां तो खराब हो गया, तो इसकी स्पीड सेम रहेगी? क्या हो जाएगी? इंक्रीज, बिकॉज एयर रेजिस्टेंस तो यहां से निकल गया, आपको रेजिस्टेंस ही खत्म हो गया, की स्पीड तेज होगी. तो फिर ये बेचारा क्या करेगा? नहीं भाई, इतनी जल्दी थोड़ी होता है. एक इमरजेंसी पैराशूट भी होता है छोटा वाला, ये वो खोल देगा बेटा. एमी मास्टर खुदा. ठीक है, एक छोटा पैराशूट भी होता है जो आप इमरजेंसी में खोल दो. ऑलराइट, तो इसमें छोटा वाला पैराशूट. साबिक ये हैबिट तो जरा मिनिमम बाहर निकल. ठीक है, ये बड़े खतरनाक इसके आते हैं. ऑलराइट बेटा, आई एम श्योर कि ये जो कर्व्स है ये आपको समझ आ रहे हैं. ऑलराइट, look at this question number 3 now quickly. This is the last question. बेटा जरा सी लाइट ऑफ. ये मैं आपको समझाऊंगा डायनामिक्स में जाके फोर्सेस वाले चैप्टर में, लेकिन यहाँ पे चूंकि आई थिंक इसका कनेक्शन बन रहा था तो मैंने थोड़ा सा समझा दिया. Okay, a free-fall parachutist falls at a constant speed. He then opens his parachute and continues to fall to the earth at a lower constant speed. G. Oh, come on. All right. Here you are. Okay. Which diagram shows how the distance fallen by the parachutist varies with the time?
ये उसने सी टाइम नहीं बताया, डिस्टेंस टाइम ग्राफ पूछा है। तो पहले डिस्टेंस ज्यादा कवर कर रहा है, बाद में थोड़ा, तो ये देखो यहाँ पे डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे, ये क्या है स्टेशनरी, बाद में क्या हुआ और कम नेगेटिव, और फिर दोबारा से स्टेशनरी, दिस इज करेक्ट, डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, यस, और फिर थोड़ा कम इंक्रीज हो रहा है। ओके, चलो देखते हैं यहाँ पे क्या हो, डिस्टेंस नो चेंज, जीरो जीरो हो रहा है, इसमें इंक्रीज हो रहा है एंड देन कांस्टेंट हो गया, यानी कि रेस्ट पे आ गया। ये तो पैराशूट इस बेचारा जमीन पे गिर गया, उसके बाद ये टाइम चलता जा रहा है, नो डिस्टेंस। तो विच वन इज सर करेक्ट? बी पार्ट। बी पार्ट, एक्सीलेंट। बेटा कुछ कुछ समझ में आ रहा है, आई एम श्योर दिस हैज गिवन यू अ फेयरली गुड आइडिया। आप लोग अब अपने टॉपिकल से ये सारे क्वेश्चंस करना। टुमारो आई विल गिव यू अ टेस्ट ऑफ दिस सी टाइम एंड डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स, ऑलराइट, और ट्राई करना, सब लोग अटेम्प्ट करें, संडे तक आपके पास टाइम होगा। ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच बेटा। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज बेटा।